درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ درود پاک جو ہے اگر اس کو ملٹی ڈائمینشنل طریقے سے دیکھا جائے، دیکھیں گناہ ہو جانا، خطائیں تو ہم خطاؤں کے پتلے ہیں، ہمیں بہت سارے اعمال ایسے ضرور ملتے ہیں کہ جن سے نیکیاں بڑھ جائیں، مگر وہ اعمال جن سے گناہ ڈیلیٹ ہو جائیں، جن سے گناہ معاف ہو جائیں، وہ وظائف یا وہ چیزیں بڑی تھوڑی نظر آتی ہیں۔ اور اس میں درود پاک ایک ایسا عمل ہے، بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مضمون ہے جو ایک بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ دیکھیں یاد رکھیے گا، قیامت کے دن جب میرے اور آپ کے اعمال نامے تولے جائیں گے نا، تب گویا دوسرے لفظوں میں ایک بیلنس شیٹ ہوگی۔ نامہ اعمال جب تولے جائیں گے تو گناہوں کے پلڑے میں گناہ رکھے جائیں گے، نیکیوں کے پلڑوں میں نیکی رکھی جائے گی۔ اچھا ایک اور بات بھی بتا دوں، دنیا میں جو میزان ہے، اسکیل ہے، جب یہاں دنیا میں جو پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ نیچے ہو جاتا ہے، علماء فرماتے ہیں قیامت کے دن جو پلڑا بھاری ہوگا وہ اوپر ہو جائے گا۔ اچھا اب ایک نیکی کسی کی زیادہ ہو گئی نا گناہوں اور نیکیوں کے پلڑے میں تو وہ جنت میں چلا جائے گا، ایک نیکی کم پڑ گئی تو اب اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ جبھی تو ایک ایک نیکی کے لیے لوگ مارے مارے پھریں گے۔ ماں بیٹے کے پاس آئے گی کہ بیٹا ایک نیکی دے دے، باپ بیٹے کے پاس جائے گا، بیٹا ایک گناہ میرا لے لے تاکہ وہ جو پلڑا ہے وہ میرا نیکیوں کا بڑھ جائے۔ بٹ نو بڈی، کوئی اس دن ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، نفسی نفسی کا دور ہوگا۔ آج چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہم چھوڑ رہے ہیں، یار نفلی ہے نا کوئی بات نہیں، درود پاک نہ پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں، صلاۃ التسبیح پڑھ لی ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں واجبات نہیں ہیں، مگر یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں اس دن کاؤنٹ ہوں گی جس دن ہمیں ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی۔ اور یہ درود کا کمال دیکھیں، ادھر نیکیاں بھی بڑھاتا ہے، ادھر گناہ بھی گھٹاتا ہے۔ ایک درود 10 نیکیاں بھی بڑھ گئی، 10 گناہ بھی کم ہو گئے، 10 درجے بھی بلند ہو گئے۔ کتنا آسان فارمولا ہے گناہوں کو اپنے نامہ اعمال سے ریموو کرنے کا۔ تو پلیز عادت بنا لو کہ جب موقع، چنک آف ٹائمز، آج کل ایک فینومینا چل رہا ہے کہ جو چنک آف ٹائمز ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بریک ملتے ہیں، اس کو بھی یوز کریں۔ دنیا میں اب ایک اصطلاح چلتی ہے، ٹرمینالوجی چلتی ہے، یونیورسٹی آن ویل۔ بھائی روڈ پر بھی کچھ سیکھو، راستے میں جو ٹائمز آیا ہوتا ہے اس میں بھی کچھ سیکھنا ہے۔ لوگوں نے اپنے بس، اپنے ٹرین، اپنے ٹرام کے جو ٹائم ہیں ڈیوٹی پر جانے آنے کے، ان آدھے گھنٹے، اس گھنٹے میں بھی کوئی نہ کوئی کلاس بک کر لی ہے، کوئی کتاب پڑھ لیتے ہیں، اور جو اس ٹائم میں انہوں نے پڑھا ہے اس پر کوئی یونیورسٹی کے ڈپلومہ حاصل کر لیتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں یہ تو چنک آف ٹائمز ہیں، پیسز آف ٹائم ہیں، اس کو بھی یوٹیلائز کریں۔ تو اگر یہی ذہن ہمارا بن جائے کہ ٹھیک ہے کہیں 5 منٹ مل گئے، کہیں 7 منٹ مل گئے، مثال کے طور پہ ہم کسی کے آفس میں گئے، اس نے کہا ذرا 5-7 منٹ میں آتا ہوں، بیٹھیے گا، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں آئیے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، موبائل نکالا اور گھمانا شروع کر دیا، وہ 7 کی جگہ 17 منٹ میں آیا، میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے بہت کچھ ہے دیکھنے کے لیے۔ اب ان 17 منٹ میں پتہ نہیں کتنے گناہ دیکھے، کتنی فضول چیزیں دیکھی، بیکار باتیں۔ اگر مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہونا، یار 7 منٹ میں تو سورہ یاسین پڑھ سکتا ہوں، یہ بریک ہے 7 منٹ کا، اس میں مجھے 10 قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ حضرت 1 منٹ ہولڈ رکھیے، فون پہ اگر کوئی کہتا ہے 1 منٹ ہولڈ رکھیے، اس 1 منٹ میں کچھ اور نہیں کر سکتا، ہولڈ ہی رکھنا ہے۔ جتنی قربانیاں، جتنی یوں سمجھیے کہ جان نثاری کی داستانیں غزوہ احد میں ملتی ہے نا، اتنی کسی اور غزوے میں نہیں ملتی۔ غزوہ بدر میں تو مسلمانوں کو لڑنے کا موقع ہی نہیں ملا، اللہ پاک نے ایسی مدد کی کہ فرشتے آ گئے ہیں، کفار کو نیست و نابود کر دیا، اور اللہ پاک نے ایسی عظیم فتح نصیب فرمائی کہ اس دن کو یوم الفرقان کہا گیا۔ لیکن احد کے میدان میں ایسا نہیں ہوا، وہاں بڑا ڈیزاسٹر ہوا، بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، اور ان میں سب سے بڑا حادثہ جو ہے وہ سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے بڑی محبت، پیارے آقا انہیں بہت پیار کرتے تھے۔
अच्छा, हजरत हमजा भी नबी पाक से बड़ी मोहब्बत करते। हजरत हमजा का ईमान लाने का वाक़या भी बड़ा अजीब है। वो कहते हैं ना, मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी दिल में थी कि उस वजह से आप ईमान ले आए। अभी आप ईमान नहीं लाए थे। अबू जहल ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में गुस्ताखी की, बुरा भला कहा। जब हजरत हमजा कहीं शिकार पे गए हुए थे, हाथ में तीर कमान भी था, वापस आए तो किसी ने कहा कि आपको पता है कि आपके भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू जहल ने बहुत बुरा भला कहा है। आपको बड़ा जलाल आया, आपने कमान ली और जाके जाके अबू जहल के सर पे मार दी। कहा तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने मेरे भतीजे को बुरा भला कहा। कहा ए हमजा, क्या तुम ईमान ले आए हो? कहा समझ लो आज से मैं ईमान ले आया हूं। बस नबी पाक की मोहब्बत ऐसी दिल में जा गुजी हुई कि आपने कलमा पढ़ा और आप ईमान ले आए। और उसके बाद यानी हजरत हमजा ईमान लाए, राइट आफ्टर फ्यू डेज हजरत उमर ईमान ले आए। ये दोनों जब ईमान ले आए ना, अब इस्लाम का नक्शा ही कुछ और हो गया। इस्लाम को वो उरूज मिला, मुसलमानों का जिगर इतना बड़ा हो गया, सीना इतना चौड़ा हो गया। हजरत हमजा और हजरत उमर जिस कौम के साथ हो, फिर दुश्मन की क्या मजाल है। आप दोनों कमाल की शख्सियत। अब हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु ग़ज़वा उहद में शहीद कैसे हुए? हजरत हमजा को शहीद करने का प्लान जो है वो वहशी नामी एक शख्स को दिया गया था। ये इसका आका था जुबैर। उसने वादा किया था कि अगर तुम इस जंग में हजरत हमजा को शहीद कर दोगे तो मैं तुझे आजाद कर दूंगा। गुलाम के लिए आजादी बहुत बड़ी चीज होती है। वो एक जगह जाके छुप गया, टारगेट रखा था कि किसी से नहीं लड़ना है, बस हजरत हमजा को शहीद करना है। हजरत हमजा जैसे ही उसके करीब पहुंचे, उसने ताक कर एक नेजा मारा, वो आपकी नाफ में लगा, पुश्त से पार हो गया। हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु तलवार लेकर उसकी तरफ बढ़े, मगर जख्मों की ताब ना लाए और आप शहादत से सरफराज हुए। फिर आपकी लाश के साथ बड़ी बेहुरमती की गई, आपके जिस्म के टुकड़े निकाले गए, आपके कलेजे को चबाया गया, आपके आज़ा को यूं समझिए कि बेहुरमती की गई। नबी पाक अलैहिस्सलाम बहुत गमज़दा हुए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बड़े आंसू बहाए। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम कमोबेश हर बुत को सैयदुश्शुहदा सैयदना हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु और शुहदाए उहद उनको शरफ देने तशरीफ ले जाया करते। और वो कमाल की हदीस है जिसका मजमून है कि इनको जो सलाम करता है, ये कयामत तक उन्हें सलाम करने वालों को सलामती की दुआ से नवाजते हैं। तो जब मदीने जाना ना, कम अज कम रोजाना एक हाजिरी तो शुहदाए उहद और सैयदुश्शुहदा के दरबार में जरूर दिया करें। कमाल की बारगाह है, कमाल की बरकत वाली जगह है। अल्लाह शुहदाए उहद के सदके हमारी मग़फ़िरत फरमाए। मैं अब आता हूं अपने टॉपिक की तरफ। मैं ये क्यों सारी मैंने तमहीद बांधी है, वहशी का कसूर कैसा था। वहशी की यूं समझिए कि कितनी बड़ी उसने गुस्ताखी कह लें, जुल्म कह लें, किसको शहीद किया था? नबी पाक के चहीते चचा को। मगर अब देखो मेरे आका की माफी, अब देखो अल्लाह की रहमत, अब देखो इस्लाम का हुस्न। आज मेरा टॉपिक है ना, गुनाह नेकियों में कैसे बदल सकते हैं, गुनाहों को हम किस फार्मूले के तहत नेकियों में बदल सकते हैं। अब गौर से सुनना, ये वाकया सुनाने का मकसद ये है कि आपको उसका कसूर पता चले कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम की है उसने। मगर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब इस्लाम की दावत देना शुरू की ना, तो वहशी के पास एक अपने कासिद को भेजा कि जाओ वहशी को कहो इस्लाम कबूल कर ले। नबी पाक का दिल तो देखें, दरगुजर तो देखें। अच्छा, जो सहाबी गए ना, तो वो वहशी जो है पहले ही कसूरवार है, मगर अब नेगोशिएशंस हो रही हैं, अब डिमांड्स हो रही हैं। वहशी कहता है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहो कि आप मुझे इस्लाम की दावत दे रहे हैं। आपका तो फरमान यह है कि जिसने किसी को कत्ल किया, अल्लाह का शरीक किसी को ठहराया, जिना किया, कयामत के दिन तो उसे दुगना अजाब दिया जाएगा। मैंने तो ये सारे काम किए हैं, मेरा क्या बनेगा अगर मैं इस्लाम ले आया? मुझे तो इतना बड़ा अजाब आप ऐलान करते हैं। तो अब मेरे लिए कोई रुखसत है? वहशी ईमान लाने से पहले अपनी तरफ से एक डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। अल्लाह करीम ने आयत नाजिल फरमाई। अल्लाह कुरान में फरमाता इल्ला मन ताब व आमना व अमिला अमलन सालिहा। तर्जुमा क्या है?
مگر جو توبہ کرے، ایمان لائے اور اچھے کام کرے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ آقا نے فرمایا جاؤ یہ آیت سناؤ وحشی کو۔ صحابی گئے اور حضرت، اس وقت تو وحشی ایمان نہیں لائے تھے، ان کو جا کے یہ آیت سنائی۔ کہتے اس میں بھی ایک شرط ہے نا اچھے کام کرنے کی۔ اگر میں توبہ کر بھی لی، ایمان لایا اور اچھے کام نہ کر سکا، یہ تو بڑی سخت شرط ہے۔ کوئی اور رخصت ہے؟ اینی تھنگ ایلس؟ ذرا آپ سوچئے، نیگوشیشن وہ کر رہا ہے، مذاکرات وہ کر رہا ہے جس نے پہلے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا دل دکھایا ہے، لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور رب کی کرم نوازی دیکھو، جبریل امین ایک اور آیت لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اچھا وہ آیت کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو آیت نازل ہوئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ترجمہ، بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا جو اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف کر دیتا ہے۔ کا جواب یہ آیت سناؤ اسے۔ وحشی کے پاس یہ آیت سنائی گئی۔ وحشی کہتا ہے اس میں بھی تو یہ ہے نا کہ اللہ جسے چاہے معاف کرے، گارنٹی تو نہیں ہے نا، میں ایمان لاؤں اور اللہ مجھے معاف نہ کرے۔ آپ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ یہاں دل دیکھیں۔ اچھا صرف نبی پاک نہیں کر رہے نیگوشیشن، اس تمام نیگوشیشنز میں رب کی رحمت بھی شامل ہے، آیتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر کہتا ہے اس میں بھی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ذالک لمن یشاء، جسے چاہے اللہ جو ہے وہ بخش دے، اس میں نہ ہوا تو کوئی گارنٹی ہے؟ اللہ اکبر، تیسری آیت نازل ہوئی۔ ہائے ہائے، میں تو یقین کریں جب یہ واقعہ پڑھتا ہوں، سنتا ہوں، جس کو کہتے ہیں نا دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے کہ وہ کریم کیسا ہے، وہ رحیم کیسا ہے۔ آیت قرآن نازل ہوتی ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کے تحت سبحان اللہ مفسر شہیر حضرت سید محمد نعیم الدین مراد آبادی کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں حق معنی یہ ہے کہ جو کفر پر مرے اس کی بخشش نہیں، اس کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے، اور جس نے کفر نہ کیا ہو وہ خواہ کتنا ہی گناہگار ہو، کبیرہ گناہ کرنے والا ہو اور بے توبہ بھی مر جائے تو اس کے لیے خلود نہیں، اس کی مغفرت اللہ کی مشیت میں ہے، جسے چاہے اس کے گناہ معاف فرمائے یا اس کے گناہوں پر عذاب کرے، پھر اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے۔ مگر اس آیت میں رب نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے بندو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ وحشی کہتا ہے اب مجھے تسلی ہو گئی، اور کلمہ پڑھ کر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اچھا جب یہ ایمان قبول کر لیا نا، اب صحابہ کرام نے بڑا کمال کا کوسچن کیا۔ ہمیں صحابہ سے ایسے ہی پیار نہیں ہے، ذرا مل کر کہہ دو سب صحابی نبی۔ یقین کرو ایسے خوبصورت سوال کیے ساڈا کم آسان ہو گیا۔ صحابی رسول کہتے ہیں حضور یہ آیت جو ہے یہ کیا صرف وحشی کے لیے یہ ہے یا باقی مسلمانوں کے لیے بھی ہے؟ کیا یہ خاص اسی کے لیے ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، رب کا اعلان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندوں میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کریم نے خود قرآن میں اپنی رحمت کا اعلان کیا ہے۔ اللہ کریم نے خوب ہمیں قرآن میں توبہ کی طرف بلایا ہے، اپنی رحمت کی طرف بلایا ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں کیا خوب ارشاد فرماتا ہے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُ عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا ہو جاتا ہے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی ہے کہ اللہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل ڈالتا ہے۔ اتنی کمال کی چیز ہے توبہ،
इतना कमाल का काम है तौबा। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, क्यों तौबा नहीं करते? कुरान तो बार बार हमें बुला रहा है। अल्लाह की रहमत, यकीन मानो, अल्लाह की रहमत जो है ना, ये चाहती है कि मैं और आप बख्शे जाए। उसकी रहमत बहाने तलाश कर रही है। बड़ा प्यारा जो फारसी का मकूला है ना, रहमत हक बहा नमी जोयत। अल्लाह की रहमत बहा यानी कीमत तलाश नहीं करती। रहमत हक बहा नमी जोयत, अल्लाह की रहमत तो बहाने तलाश करती है। किसी तरह बंदा बख्शा जाए, बस सर झुका ले, बस माफी मांग ले, बस रुजू कर ले, बस अच्छा हो जाए, अल्लाह से दोस्ती कर ले। मगर बंदा रब को राजी करने की फिक्र नहीं करता। अब मैं आपको कुछ हदीसें सुनाता हूं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर तुम इतनी खताएं करो कि वो आसमान तक पहुंच जाएं, फिर भी तौबा करो तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल जरूर तुम्हारी तौबा कबूल फरमाएगा। हिम्मत नहीं हारनी है। गुनाह बहुत हो गए, हम जानते हैं बड़े गुनाह हैं, मगर ये गुनाह हमें पता है बहुत ज्यादा है। अल्लाह की रहमत के आगे कुछ नहीं है, उसके खजाने बहुत बड़े हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी है, ऐ मेरे बंदो, तुम रात दिन गुनाहों में बसर करते हो और मैं गुनाहों को बख्शता रहता हूं और मुझे कुछ परवाह नहीं, बस तुम मुझसे बख्शिश तलब करते रहो, मैं तुम्हें बख्शता रहूंगा। यानी वो तो बख्शिश करना चाहता है। पंजाबी शायर कहते हैं ना, रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा, जे एक कतरा बख्शे मैनू, बस एक कतरा ही चाहिए। मैं और आप और हमारे गुनाह उसकी रहमत के आगे कुछ नहीं, एक कतरा ही उसकी रहमत का बहुत है। जे कतरा बख्शे मैनू कम बढ़ जावे मेरा, अदल करे ते थर थर कंबन ऊंचियां शाना वाले है। अल्लाह अगर तूने इंसाफ किया ना तो हम तो गए, हम इंसाफ के सवाली बनकर नहीं बैठे आज की रात। अगर तू अदल करेगा तो जिनके नाम भी बड़े बड़े हैं ना, उनकी भी हालत खराब हो जानी है। अदल करे ते थर थर कंबन ऊंचियां शाना वाले, मौला फजल करे ते बख्शे जासन मैं वर्गे मुंह काले। बस अल्लाह तेरी रहमत के सवाली हैं और वो रब खुदा की कसम रहमत बरसाना चाहता है। वो चाहता है हम बख्शे जाए, वो चाहता है हम माफ कर दिए जाए। एक शख्स नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया, आराबी, एक गांव का बंदा था, भोला भाला सा आदमी था। कहता है या रसूलल्लाह, ये बताइए कयामत के दिन मखलूक का हिसाब कौन लेगा? अल्लाह के हबीब फरमाते, अल्लाह लेगा। या रसूलल्लाह, क्या अल्लाह खुद हिसाब लेगा? नबी पाक ने फरमाया, हाँ अल्लाह खुद हिसाब लेगा। तो वो मुस्कुरा दिया है, गांव का बंदा हंसने लगा। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराने की वजह पूछी कि तुमने पहले तो हिसाब किताब की बात की, कयामत के बारे में सवाल किया, मैंने रिप्लाई दिया तो मुस्कुराने लगे। तो वो क्या कहता है कि करीम जब किसी पर कुदरत पाता है ना तो माफ कर देता है, और जब हिसाब लेता है तो दरगुजर फरमाता है। अल्लाह से बड़ा करीम कौन है? अगर उसी ने हिसाब लेना है तो फिर तो खैर ही खैर है ना। तो अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने रिप्लाई किया दिया कि आराबी ने सच कहा, जान लो अल्लाह अज़्ज़ वजल से बड़ा करीम कोई नहीं, वो सब करीमों से बढ़कर करीम है। बेसिकली जो है ना, वो कनेक्शन रिक्वायर्ड है, वो भरोसा रिक्वायर्ड है, वो मोहब्बत अल्लाह से रिक्वायर्ड है। फिर अल्लाह तो करीम है, करीमों से बढ़कर करीम है, उसी ने तो करीमी सिखाई है। उलमा लिखते हैं कि माँ के दिल में जो बच्चे के लिए रहमत होती है ना, और जानवर भी अपने बच्चों से जो प्यार करते हैं, अल्लाह की 100 रहमतें हैं, अल्लाह ने उन 100 रहमतों में एक रहमत दुनिया में उतारी है, और उस एक रहमत की बरकत से माँ बच्चों से प्यार करती है, जानवर अपने बच्चों से प्यार करते हैं, बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं। वो 99 रहमतें अल्लाह ने कयामत के दिन के लिए बचा रखी हैं। ये उस दिन करम नवाजी फरमाएगा, उस दिन अपने बंदों की बख्शिश फरमाएगा। ऐसा करीम मौला है। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में
कैदियों को लाया गया तो एक औरत भाग रही थी, उसका बच्चा उससे गुम हो गया था। दौड़ते 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 उसको बच्चा नजर आया, उसको लिया, सीने चिपकाया, दूध पिलाने लगी। बस माँ को बड़े टाइम बाद बच्चा मिले, क्या कैफियत होती है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं अल्लाह ताला अपने बंदों पर इससे कहीं ज्यादा रहमो करम फरमाता है जितनी ये माँ अपने बच्चे पर मेहरबान है। ये वो बातें हैं जो हमारे दिल में होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम अल्लाह से ही बदगुमान हो जाते हैं। अल्लाह मुझे कुछ देता नहीं है, अल्लाह ने मुझे कुछ दिया नहीं है, अल्लाह से क्या मांगू जनाब, कुछ होता तो है नहीं। ये ना किया करो, अल्लाह से दोस्ती कर लो। अल्लाह से बढ़कर हम पर कोई करम नवाज नहीं, उसी ने सब कुछ दिया है। हमारी एक बात कोई ना माने ना, हम उससे नाराज हो जाते हैं। 2-3 बार ना माने तो उससे दोस्ती खत्म कर देते हैं, नौकरी से निकाल देते हैं। बच्चा ज्यादा तंग करे, बच्चे को बाप घर से निकाल देता है। हम में से कोई 30 साल का बैठा है, कोई 40 साल का, कोई 50 साल का। कभी सोचना हमने अल्लाह की अब तक कितनी निभानी है, कितनी नाफरमानियां की हैं। कभी ऐसा हुआ कि यार आज नजर नहीं आ रहा, क्यों? बस यार वो सुबह हराम देख लिया था, अल्लाह ने आंखें ले ली है। आज सुनाई नहीं दे रहा कुछ, भाई क्यों सुनाई नहीं दे रहा? आज सुबह अल्लाह की नाफरमानी की, हराम सुन लिया, अल्लाह ने कान दिए थे, उसी ने समात वापस ले ली। यार आज कुछ मैं बोल नहीं पा रहा हूं, इशारे कर रहा हूं, क्यों? बस वो झूठ बोल दिया, हराम बोल दिया, गाली निकाली, अल्लाह ने जबान वापस ले ली। वो कुछ वापस नहीं ले रहा, वो दिए जा रहा है, हम उसकी नाफरमानी किए जा रहे हैं। मगर क्यों तौबा नहीं करते, क्यों उसको राजी करने की तरफ नहीं आते? बंदा अल्लाह की फर्मा बरदारी करे, ये ठीक है जो करता है, मगर इससे अपर लेवल पता है क्या है? कि अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह की नाफरमानी ना करे, मेरा रब नाराज ना हो जाए। इतना करीम, इतना प्यारा रब, वो मुझसे नाराज हो जाए, मैं ऐसे काम करूं जिससे वो नाराज हो जाए, ये काम नहीं करना। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, वो कैसा कैसा गुनाहों को माफ करने वाला है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था और उस दौर में बारिश नहीं हो रही थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरे गांव के, शहर के लोगों को जमा किया और एक बड़े मैदान में चले गए। अप्रोक्सीमेटली 70,000 पीपल ओवर देयर। दुआ होने लगी, बारिश नहीं हुई, बादल भी कोई नहीं आया, वही धूप। आप कलीमुल्लाह है, आपने अल्लाह से अर्ज की मौला बारिश नहीं हो रही, मौला करीम करम फरमा। तो इरशाद हुआ, ए मूसा, इस मजमे में एक बंदा ऐसा है जो 40 साल से मेरी नाफरमानी कर रहा है, मुझे नाराज कर रहा है। ऐ मूसा, जब तक ये बंदा इस मजमे में है बारिश नहीं होनी। हजरत मूसा ने कहा, या अल्लाह, मैं कैसे उस बंदे को तलाश करूं? कहा, मूसा तुम आवाज लगाओ, ऐ वो बंदे जो अल्लाह की नाफरमानी करते हो, निकल जाओ मजमे से। कहा, या अल्लाह 70,000 लोग हैं, मेरी आवाज कैसे पहुंचेगी? इरशाद हुआ, मूसा आवाज लगाना तुम्हारा काम है, पहुंचाना हमारा काम है। हजरत मूसा खड़े हो गए, कहा, लोगों तुम्हारे अंदर एक बंदा है जो 40 साल से अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, खुदा के वास्ते इस मजमे से निकल जा, तू वो बदबख्त है जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही। वो बंदा जो था वो मजमे में ही था, वो समझ तो गया कि बात तो मेरे बारे में हो रही है, मैं ही हूं जो 40 साल से अल्लाह की नाफरमानी कर रहा हूं। पहले उसने राइट देखा, फिर उसने बाईं देखा, शायद कोई और हो, है कोई नहीं खड़ा हुआ। अब उसने क्या किया? सुनो तौबा किसको कहते हैं। तौबा के लिए कोई इज्तिमा करने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ा एहतमाम करने की जरूरत नहीं है, बस एक कनेक्शन चाहिए, ये सेकंडों में हो जाती है। वो दिल की कैफियत रिक्वायर्ड है। उस बंदे ने क्या किया सुनो, कहता, या अल्लाह, आज मुझे जलील होने से बचा ले, मैं मानता हूं मैं ही वो हूं जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही है। मैंने 40 साल तेरी नाफरमानी की है, मगर अल्लाह अगर आज मैं खड़ा हो गया, पूरे शहर वालों को पता चल जाएगा कि मैं वो बदबख्त हूं जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही। बस अल्लाह आज बचा ले, आज जलील होने से बचा ले। अब वादा करता हूं नहीं करूंगा। पता है क्या हुआ?
बादल आए और बारिश बरसना शुरू हो गई। हजरत मूसा ने कहा, या अल्लाह, बंदा तो कोई नहीं गया, निकला तो कोई नहीं, ए अल्लाह ये बारिश कैसे हो गई? अल्लाह ने क्या फरमाया? क्या मूसा, उस बंदे ने मुझसे दोस्ती कर ली है। मेरा बंदा जो मेरी नाफरमानी करता था ना, उसने दोस्ती कर ली है। सुनो हजरत मूसा क्या कहते हैं, कहते या अल्लाह, अब वो बंदा तो मिला दे जिसने तुझसे दोस्ती कर ली, मैं उससे मिलना चाहता हूं। सुनो मेरे रब का फरमान। रब फरमाता है, मूसा, जब मेरा वो नाफरमान था मैंने उसको फिर छुपाए रखा था, अब तो फरमा बरदार हो गया, तुझे कैसे बता दूं वो कौन है। ये है तौबा। क्या किया उसने? उसने कोई इज्तिमा नहीं किया, कोई दुआएं लंबी चौड़ी नहीं की, बस अन्नदमुत तौबा, शर्मिंदगी तौबा है, सच्ची तौबा। बस अब नहीं करूंगा, ये कमिटमेंट होना चाहिए। ऐसा ही एक वाकया हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु का दौर है। हजरत उमर का जलाल, आपकी अदालत है। एक बार आप जा रहे, एक बंदा सामने से आया, उसके हाथ में शराब की बोतल। हजरत उमर हो और शराबी शराब की बोतल के साथ पकड़ा जाए तो गया ना, रेड हैंडेड। हजरत उमर ने कहा, बताओ क्या है। उसने बोतल छुपा दी, बताओ क्या है। वो बंदा कहता है, हुजूर, इसमें सिरका है। ये शराब, कहता है, हुजूर, इसमें सिरका है। हजरत उमर ने कहा, दिखाओ क्या है इसमें। अब जरा तसव्वुर कीजिए, इमेजिन कीजिए, एक बंदा सामने खड़ा हो, हजरत उमर यहां खड़े हैं, वो बंदा सामने खड़ा है। ये कितनी देर की बात है, कितनी देर की कॉन्वर्सेशन है, सेकंड्स। बोतल हाथ में छुपाई हुई है, कि दिखाओ क्या है। उस शराबी ने क्या किया? उसने उसी वक्त अल्लाह को पुकारा, अल्लाह आज बचा ले, अल्लाह उमर के आगे जलील होने से बचा ले, अब शराब नहीं पीऊंगा, अल्लाह आज पकड़ा गया तो मारा जाऊंगा, बस आज बचा ले मालिक। इसमें कितनी देर लगी होगी? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसीजर ऑफ तौबा, रेपेंटेंस। बस उसने यही तो कहा और डरते डरते बोतल बढ़ा दी हजरत उमर के हाथ में। हजरत उमर देखते हैं तो उसमें शराब नहीं, उसमें सिरका है। वो पर्दे डालने वाला है, वो सत्तार है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तौबा? एक्चुअल उसकी शराइत क्या है? 3 शर्तें हैं। पिछले गुनाह पर नादिम होना, शर्म आनी चाहिए, गिल्ट फील करे कि वाकई मुझसे मिस्टेक हुई है। सेकेंडली, इस वक्त इस गुनाह को छोड़ दे कि अब नहीं करूंगा, और आइंदा ना करने का पक्का इरादा करे। हमारी तौबा भी बाज़ौकात तो ऐसी होती है जिसकी मजीद तौबा की आदत है, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह तौबा है, अब नमाज या अल्लाह पढ़ूंगा, कल फजर पढ़ने का प्लान नहीं है फिर भी तौबा कर रहे हैं, या अल्लाह हराम नहीं देखूंगा, कल देखने के लिए फिल्में लेकर रखी हुई है। ये तौबा नहीं है। तौबा की तो अब ना करने का पक्का इरादा, गुनाह छोड़ दे। हाँ, फिर अल्लाह पाक हमें बचाए शैतान, फिर अगर गुनाहों की तरफ लगा दे तो फिर तौबा करे, लेकिन तौबा करते वक्त पक्का इरादा होना चाहिए। ये तौबा है। अच्छा, अब आते हैं, इतने फजाइल हैं फिर तौबा क्यों नहीं करते? इसकी कई रीजन उलमा ने लिखे। एक रीजन पता है क्या है? गुनाहों की जो लज्जत है ना, वो डायरेक्ट मिल जाती है, सवाब का इनाम तो मिलता नहीं है। इंसान जो है ना, इसकी साइकी क्या है, जो कैश मिलता है ना वो ले लेता है, और जो बाद में मिलने वाला है उसको छोड़ देता है? लेकिन अब अगर दुनिया की लॉजिक के जरिए मैं आपको समझाऊं कि अगर आपको डॉक्टर कहता है कि आपका शुगर लेवल बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, आप चिकना मत खाइएगा वरना हार्ट अटैक हो सकता है, हम हलाल खानों से रुक जाते हैं। पराठा खाना हलाल है ना, चीज खाना हलाल है ना, रुक जाते हैं। क्यों? डॉक्टर कह रहा है ज्यादा खाऊंगा तो वेन बंद हो जाएगी, हार्ट अटैक हो जाएगा। आज तुम्हें डॉक्टर कह रहा है कि हार्ट अटैक हो सकता है, तुमने हलाल छोड़ दिया। अल्लाह के नबी सच्चे वादे फरमा रहे हैं कि हराम देखोगे तो आंखों में अजाब दिया जाएगा, हराम सुनोगे तो कानों में जहन्नम के कील ठोके जाएंगे, हैं? झूठ बोलने वाले के गल फड़े खींचे जाएंगे कयामत के दिन, और उसकी शक्ल बिगाड़ दी जाएगी। सूद खाने वाले को ये अजाब होगा, माँ बाप को सताने वाले को ये अजाब होगा। ये हदीस कुरान में बातें भरी पड़ी हैं।
उस पर क्या यकीन नहीं है? डॉक्टर के कहने पर हलाल छोड़ दिया, अल्लाह के हबीब के कहने पर हराम छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ये सच्चे वादे हैं, ये अजाब होंगे अगर नहीं मानोगे तो इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए। दूसरी तौबा में एक प्रॉब्लम क्या होती है कि बंदा कहता अभी तो बड़ी जिंदगी पड़ी है, मौलाना साहब की बातें बहुत अच्छी हैं, मगर बस 50-55 साल का हो जाऊं उसके बाद अल्लाह अल्लाह ही करना है, अभी तो नौजवान हूं, अभी तो मजे कर लूं, फिर उसके बाद ये खुद भी तो 50 साल के होने के बाद ही ऐसी बातें कर रहे हैं ना, तो मैं भी होऊंगा तो कर लूंगा, अल्लाह अल्लाह ही करूंगा, दाढ़ी भी रख लूंगा, इमामा भी पहन लूंगा। ये भी शैतान का बहुत बड़ा वार है। कोई है ऐसा इतने सारे पढ़े लिखे लोगों में कि इस बात की गारंटी हो कि अगले रमजान तक हम जिंदा रहेंगे? है भाई? कोई हाथ उठाए? नहीं है। अच्छा, रमजान तो छोड़ो, ईद तक जिंदा रहने की किसी के पास गारंटी है? कोई एक? अच्छा नहीं है, चलो ईद को भी छोड़ देते हैं। अभी मैं और आप मस्जिद से जिंदा बाहर निकलेंगे इसकी गारंटी है? आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। जब पल की खबर नहीं है तो तौबा में डिले क्यों कर रहे हो? हम कैसे गारंटी ले सकते हैं कि हम बूढ़े होकर ही मरेंगे? देखें, दुनिया में हम एक सीक्वेंस से आए हैं, पहले मेरे दादा आए थे, फिर वालिद आए, फिर मैं आया, फिर मेरे बच्चे, फिर मेरे पोते, ऐसा ही है ना? जानने की सीक्वेंस ये नहीं है, जरूरी नहीं है ये सीक्वेंस हो, दादा मौजूद होता है, पोता चला जाता है। जाने में हम सबको कुछ नहीं पता कि हमारी कब बारी आएगी। तो तौबा फौरन करनी है, गुनाह हो गया फिर तौबा करनी है। एक और शैतान का वार क्या होता है कि यार तौबा तो कर लूंगा, मगर तौबा कर ली ना तो फिर मजा नहीं रहेगा लाइफ में। यार ये जो इंजॉयमेंट है, पार्टी शार्टी है, फिल्में ड्रामे गाने बाजे और हराम चीजों में जो मजा है, ये सब खत्म हो जाएगा, अल्लाह अल्लाह करता रहूंगा तो बोर हो जाएगी लाइफ। ये भी नौजवानों को शैतान एक बात सुनाता है, समझाता है। अब जरा इसका जवाब सुन लेना। इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं। दो दोस्त हैं और एक दोस्त है जो वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन समझते हैं? सब्जी खाता है, वो गोश्त खाता ही नहीं। उसके दोस्त के यार कभी तो चिकन खा ले यार, इतनी बड़ी नेमत है, कभी तो मटन। कहता नहीं भाई, इस दाल में जो मजा है ना, पालक में जो मजा है, सलाद में जो मजा है, उसके अलावा लाइफ में कुछ भी नहीं है। एक दिन दोस्तों ने प्लान किया, उसको पकड़ा और जबरदस्ती उसको चिकन खिला दी। चिकन खाई कर थोड़ी और खिलाओ यार। यार ये तो बड़ी कमाल की, मैं सारी जिंदगी सब्जी ही खाता रहा, हटाओ उसको, जरा मटन चखाओ। ओए होए, और बड़ी नेमत। अब उसको पता चला कि बेहतरीन खाने तो ये थे, मैं सारी जिंदगी वेजिटेरियन बना रहा। एग्जाम्पल के लिए समझाई है। अब जरा तसल्ली से समझना, जिसको असल में फिल्मों ड्रामों गानों बाजों शराब की महफिलें, जुए की महफिलें और रंगो सुरूर और जिसको हराम महफिलें कहें, उसका लुत्फ है ना, उसको लगता है मजा इसी में है। उसको पता ही नहीं कि नात खानी का लुत्फ क्या है। उसने कभी याद रसूल में आंसू बहाए ही नहीं है, हैं? उसको बेपर्दा और बेहया औरतों में बड़ा लुत्फ आता है। उसको ये नहीं पता कि इश्क रसूल में जब रात गुजरती है, याद नबी में रोते रोते कैसी गुजरी रात ना पूछो। तहज्जुद पढ़ने का लुत्फ क्या है, वजू करके कैसा रिलैक्स फील करते हैं, नमाज पढ़ के निकलते हैं तो कैसा बर्डन रिलीज होता है। प्रॉब्लम यह है कि जिसने गुनाहों वाली लाइफ गुजारी है वो समझते मजा ही उसी में है। अरे उसमें मजा नहीं है, क्योंकि मुझे और आपको रब ने बनाया है। दुनिया का दस्तूर है, मैन्युफैक्चरर्स नोज वेरी वेल, बनाने वाला बताता है कि इस चीज का फंक्शन क्या है। आप जब कोई गाड़ी खरीदते हैं, साथ एक किताब आती है, घड़ी खरीदते हैं, छोटी सी बुक आती है, इसके फंक्शंस क्या हैं, कौन सा बटन क्या है। मुझे और आपको किसने बनाया है? किसने बनाया है? कौन बताएगा सुकून कहां है? अल्लाह ही बताएगा ना। अल्लाह ने बनाया, वो खालिक है, सुकून किधर है वो बताएगा, मजा किधर है वो बताएगा। उसने अपने कलाम में बता दिया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक अल्लाह के जिक्र में दिलों का चैन है। चैन यही है, भागते रहो जिधर भी जाओ, लेकिन चैन से दूर रहोगे। अब मिलता क्यों नहीं है? लास्ट पॉइंट। मौलाना साहब बात तो बड़ी अच्छी की, मैं तो आता हूं मस्जिद में दिल ही नहीं लगता, नींद आने लगती है, बयान सुनता हूं तो नींद आती है, 3 घंटे की फिल्म में आंख बंद नहीं होती है, नींद आती तो उड़ जाती है। अल्लाह अल्लाह करता हूं, कुरान पढ़ता हूं, आधा रुकू पढ़ता हूं तो आंख बंद हो जाती है। आप कहते चैन इसमें है, सुकून इसमें है, मुझे तो सुकून नहीं मिलता, मैं तो मस्जिद में आता हूं तो बेकरार हो जाता हूं। हाँ, अब इसका जवाब ले जाओ, फिर बात को कंप्लीट करते हैं। दो बातें हैं।
रिवायतों का मजमून है। मोमिन मस्जिद में ऐसा है जैसा मछली पानी के अंदर है, और मस्जिद के बाहर ऐसा है जैसा फिश आउट ऑफ द वाटर। बाहर जाए तो बेकरार हो जाती है ना मछली पानी से, फिर पानी में जाने का दिल चाहता है। तो मोमिन की तारीफ तो ये बताई गई। हमारा हाल बुरा है, हम तो मस्जिद में आते ऐसा लगता है फिश आउट ऑफ द वाटर है। यार ऐलान तो हुआ था 1:15 बयान खत्म होगा, अभी तक तो खत्म नहीं किया। हो सकता है कोई सोच रहा हो इमाम साहब 2 मिनट लेट हो जाए तो टेंशन शुरू हो जाती है। बाहर जाके आधा घंटा बहस कर लेंगे, इमाम साहब ने 2 मिनट लेट क्यों आए, वो इमाम साहब की खैर नहीं, अल्लाह के घर में 2 मिनट बैठे थे तो मैं टेंशन शुरू हो गई। तो इसमें प्रॉब्लम मस्जिद का नहीं है, इसमें प्रॉब्लम हमारा है। इसका मतलब देयर इज समथिंग बैड इन माय हार्ट। मुझे क्यों मस्जिद में चैन नहीं आ रहा? नबी पाक फरमा रहे चैन, और लोगों को आता है। जिसको नहीं आता वो ये ना समझे किसी को नहीं आता। यकीन करे अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त पूछो कई दिल ऐसे होंगे जिनका दिल नहीं चाह रहा कहीं और जाने का। खुदा की कसम, जो इस वक्त सकीना दिल पर नाजिर हो रहा है कि कितना लुत्फ आ रहा है, कितनी रहमत महसूस हो रही है। मैं कहां बैठा हूं? मेरे रब के घर में बैठा हूं, मेरे अल्लाह का जिक्र कर रहा हूं। इससे अच्छी जिंदगी का मकसद क्या है? अगर अभी मौत आती है तो इससे अच्छी मौत क्या है? ये कैफियत बनती है लोगों की जिनको सुकून आता है। तो जिसको नहीं आता वो अपना प्रॉब्लम चेक करे कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन माय हार्ट। बिल्कुल यही मसला है कि अल्लाह ने कुरान में फरमा, ला रैब किताब है ना, कुरान में तो शक नहीं है। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह के जिक्र में दिलों का चैन है, मुझे क्यों नहीं मजा आता? इसका मतलब मेरे दिल में प्रॉब्लम है।